एग्रो बेस्ड जो स्टार्टअप है उनकी आगे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। अब लोग जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे हटके जो स्टार्टअप बना रहे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। ये कुछ डिफरेंट कर रहा है। जो मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी, बड़ी कंपनीज बना रही हैं, वो तो चल ही रहा है, बट लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, बट एक स्टार्टअप जो है आई थिंक और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कितने, अब अगर मैं कहूँ तो मेरे पास इस टाइम मेरे कैफे में ही 8 जने मेरे पास हैं, तो जो मेरी बेकरी है उसमें मेरे पास अलग से हैं। तो ऐसे है कि अगर मैं अकेली ने स्टार्ट किया तो आगे से आगे 10, 11, 12 बंदे मेरे अंडर, अब उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। Everyone, I'm Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pep Hack Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Miss Jyoti Gambhir. She has done BA, also done multiple courses related to food science and technologies. She is the founder of Delicious Bite and also working on agro-based startup. So as we all know that no one better than a mother can cook in the world. Her story also begin with the same kind of concept, the motherly affection, bonding with the need of healthy cooking, nutrition and customized stuff for her daughter. Appreciation and passion are the foundation stone of her adventurous journey. So appreciation from her near ones and her passion to bake sustainable, healthy, nutritional and non-toxic recipes have made her products available in almost more than 5,000 plus households today. Formal training at the Food and Science Technology Department not only gave her the exposure about the ways to bake without preservatives, but also learned how to blend the Vedic ways with new scientific technologies to add value to our food. In order to enjoy the cuisines of your loved ones with richness of every bite, where delicious aroma wrapped around you from freshly baked recipes that are having very high sensory, nutritional and microbiological qualities. She have come up with the dine-in and takeaway cafeteria with rooftop sitting. At Delicious Bite, she worked from customized to customerized, where their relationship is also like their food, which is preservative free. So today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome Jyoti ji, the platform is open and now over to you. Thank you so much. So pleasure to have you here. So first thing I'd like to know from you is like how did your past life has affected the person you wanted to be in your life and what you are? पास्ट लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, बच्चों के साथ थी। आई थिंक वो भी एक जर्नी अच्छी होती है जब आपके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो राइट टाइम था वो मेरे को बच्चों को बड़े करने के बाद, उनकी शादी करने के बाद ही था। तो शायद इसी वजह से अब मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम है और मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ। राइट। और एक चीज और होती है ना, व्हेन वी आर ग्रोइंग, लाइक जब हम छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उस टाइम करियर चॉइसेस को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है। तो आपके दिमाग में कौन कौन सी वो चीजें आती थी जो आप करना चाहती थी उस टाइम पे? मैं उस टाइम पे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग पे जाना चाहती थी। तो फूड मेरा पैशन था, मतलब अलग अलग चीजें शादी से पहले भी मेरे को होता था कि कुछ नया सीखूं, कुछ बनाऊं। शादी के बाद फिर जैसे आप नई फैमिली में आते हो, कुछ अपनी सीखी हुई चीजें होती हैं, कब कुछ आप जब न्यू फैमिली में एंटर करते हो वहां से बहुत कुछ सीखते हो। फिर जब आपके बच्चे होते हैं तो उनके लिए और चीजें आपको बहुत कुछ करनी पड़ती है। तो बहुत कुछ आप लाइफ में, मेरे को लगता है कि लर्निंग ही होती है, ऑलवेज लर्निंग। या करेक्ट। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी लर्निंग कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। जिस दिन लर्निंग खत्म हो गई हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और हर स्टेज पे चीजें भी बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाती है। मतलब टाइम के साथ साथ आप सब कुछ बदल जाता है और आपको बदलना चाहिए साथ में। नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। करेक्ट। और फूड एक चीज है which you are passionate about. Apart from that, और कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों को लेके आप अपने लाइफ में काफी पैशनेट हो?
मैं इंटीरियर के मामले में हूँ, मतलब मैंने अपने कैफे का इंटीरियर किया, अपने घर का भी किया, और मैं कपड़ों के लेके मतलब अपने जो अपनी मेरी ड्रेसेस होती हैं उनको भी लेके मैं, होता है कि मेरे को खुद को डिजाइन करवाना है, मेरे को अपने हिसाब से डालना है। मतलब मेरे को ये नहीं होता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, मेरे को होता है कि कैसे मैं उसको और डिफरेंट कर सकती हूँ या जो मेरे को बेस्ट लगे। करेक्ट, दैट्स रियली। और ऐसे ही फूड को लेके मतलब, और थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, पोइट्री भी है। तो वो आप एज अ ब्लॉगिंग के तौर पे लिखते हो या अभी अभी सिर्फ अपनी डायरी में ही लिख रहे हो? नहीं, मेरा पेज है फेसबुक पे, बट डायरी में ही ज्यादा लिखती हूँ। कई बार होता है कि जरूरी नहीं होता आप हर चीज किसी के साथ शेयर करो। आई थिंक कुछ चीजें आपकी पर्सनल होती हैं, तो वो मैं कुछ मैं अपनी कर देती हूँ शेयर की चीजें। Right. ऐसी बात नहीं है। जैसे अपने इस पे ही मैंने एक लिखी थी कि वो पंजाबी में है। आपके हिंदी वाले में चलेगी नहीं, बट इसमें एक और भी है, उड़ते पंछियों जैसे मेरे सपने भी आजाद हैं, हकीकत के लगे पंख इनको इसलिए ये आबाद। नाइस, रियली नाइस। तो बहुत क्रिएटिव हो आप, दैट इज रियली वंडरफुल। तो अगर हम बात करें कि जो आपका वर्क और एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, क्या क्या किया है और अब क्या विचार है करने का? स्टार्ट मैंने घर से किया था अपनी डॉटर के लिए। जैसे मैं आपको बता रही थी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज ए स्टार्टअप मेरी सिलेक्शन हुई। ये उनका फर्स्ट कोहर्ट था RKVY रफ्तार का, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप को प्रमोट करना स्टार्ट किया था। तो उसमें मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी से, दरअसल वही यूनिवर्सिटी में मेरी डॉटर पहले पढ़ती थी, वो वहां से चली गई, वहीं से मैंने फिर कोर्सेज किए, तो लिंक बनते बनते बन गए। उन्होंने बोला कि आप अपना ना फॉर्म भर दो, तो मैंने कहा था मेरी सिलेक्शन होगी। फिर मैंने कहा चलो चांस लेने में क्या जाता है, ये तो नहीं होगा कि मैंने किया नहीं, कोशिश नहीं की। तो मेरे को लगता है कोशिश करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने वो किया। मेरी प्रेजेंटेशन थी वो मेरी डॉटर ने बनाई, तो मेरे को यही था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी उनको। मैं प्रोडक्ट्स अपने ले गई। मेरे को फाइनेंशियल वाला वो जो है आज तक वो समझ में नहीं आया कि उनको वो कैसे बताना है कि मैं इतनी ग्रोथ करूंगी, इतनी ग्रोथ करूंगी, इतनी करूंगी। देखो ये तो हम सब सपने देखते हैं कि हम इतनी ग्रोथ करेंगे, इतनी करेंगे, या तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है या कम रह जाती है। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो पेपर पे हमें वो चार्ट कभी साइन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमने ग्रो करना है। हाँ, तो ये आपका क्योंकि जब ये फर्स्ट था मेरा, फर्स्ट था और डिलीशियस बाइट। डिलीशियस बाइट्स का। हाँ। तो मैंने ये डिलीशियस बाइट्स भी मेरे बच्चों ने नाम रखा हुआ था। नाम इसका मतलब जब मैंने वहां ज्वाइन किया उससे पहले 10 साल पहले इसकी वेबसाइट बन चुकी थी, इसका फेसबुक पे पेज बन चुका था 10 इयर्स पहले। मतलब अब वो सोचो कि 10 साल पहले एक वो पत्नी रखी गई थी कि बच्चे मेरे कह रहे थे कि हम जब भी आप शुरू करोगे डिलीशियस बाइट्स के नाम से शुरू करोगे। तो वो मेरे बच्चों ने उसका एक नाम रख दिया, उसकी वेबसाइट बन गई, उसको हमने 10 साल पहले फेसबुक पे पेज बना लिया। उसके बाद तब मैंने उसको रजिस्टर करने के लिए दे दिया, तो उसका ट्रेडमार्क भी ले लिया मैंने। तो वहां से जब मैं अपने प्रोडक्ट लेके गई वहां पे, तो वो सब मेरे से पूछ रहे थे कि आप कैसे कैसे करोगे आगे, कैसे आपका मार्केट में कैसे लेके आओगे। तो मैंने साथ साथ ना अपने कुकीज खोल दी, तो वो सब ने खाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मतलब मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सबने अच्छी ट्रिक है। तो वो जब सबने खाई, मतलब कुछ चीजें होती हैं आपसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट बोलने, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आई थिंक वो पॉजिटिव रहा मेरे लिए। तो वहां पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद हमारा 2 मंथ्स की जैसे कोर्सेज, आप छोटी सी स्मॉल सी MBA कह सकते हैं। हाँ। हमें पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब सिखाया जाता है। सब एक्सपर्ट्स आए, अपने लेक्चर दिए, उन्होंने बताया अगर हमें ट्रेड सीक्रेट करना है, कुछ करना है, मतलब हम सब कैसे कर सकते हैं, FSSAI, मतलब हर चीज, हर नॉलेज आपको मिली। इसके साथ हमारे कॉन्टेक्ट भी बढ़े, हम लोगों को मिले। उसके बाद जब मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन होनी थी पूसा में, तो तब भी उसके बीच में मतलब मैंने ऐसा था कि यहाँ पे तो मैंने एडमिशन पहले ली थी बच्चों की शादी से पहले। तो बाद में क्या, जब फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले
मेरा पूसा में एक मेरे बच्चों की शादी में दिसंबर में ब्राजील को प्रेजेंटेशन देनी थी। तो मैंने मतलब जैसे मेरी दोनों बेटियों की शादी साथ साथ में थी, एक की 3 तारीख को थी, एक की 7 तारीख को थी। तो 2 तारीख को वहां पे प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने बोला कि दिल्ली आना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा कैसे जाऊंगी, तो जैसे मेरी डॉटर की मेहंदी थी फर्स्ट को, तो रात को जैसे खत्म हुआ फंक्शन, मैं रात को 1 बजे ड्राइवर के साथ दिल्ली गई। वहां पे ब्राजील के सामने अपने प्रोडक्ट्स भी बना के लेके गई सारे, एक प्रॉपर ट्रे में सजा के। तो उसके बाद वहां पे उन्होंने खोला, खाया, प्रेजेंटेशन दी। वहां से उनको मैंने बोला कि मेरी डॉटर का फंक्शन नेक्स्ट है रात को, लेडी संगीत है, तो मैं कैसे, वो कहते कोई बात नहीं, हम आपकी सबसे पहले कर देते हैं। उनको पता था ये कि मशीनरी की प्रेजेंटेशन है, बट उनको था कि मेरी कुकीज ब्राजील तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरे को भी था कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिल जाएगा, हाँ कैसे करना है। अभी तक ऐसा है कि मेरे को कोई भी चांस मिलता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ मिल रहा है तो इसमें ऊपर वाले की कोई मर्जी है, तो कोशिश तो करना मेरा काम है। करेक्ट। तो वो वहां से आपकी फर्स्ट स्टार्टअप की जर्नी शुरू हुई, और सेकंड स्टार्टअप की जर्नी कैसे शुरू हुई? फर्स्ट स्टार्टअप नहीं, अभी जर्नी है, अभी आपको आगे बताती हूँ। तो वहां से जब फिर उसके बाद तो चलो मैं अपनी प्रेजेंटेशन देके घर आ गई, मतलब उनको मेरे प्रोडक्ट्स भेजने थे। फिर उसके बाद इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन होनी थी, ये स्टार्टअप मतलब हमें जो ग्रांट मिलनी थी या कुछ होना था, इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिल्ली में थी, मार्च में थी फाइनल। तो तब भी क्या था कि तब भी मेरे को प्रेजेंटेशन का वही फंडा था कि मेरे को तो अपने प्रोडक्ट्स लेके जाने हैं। पीपीटी बन जाती है वो वहां पे देखो आप सब, बट मैं जो समझा सकती हूँ, मैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकती हूँ। तो वहां पे भी मैं ले गई, वहां पे भी यही हुआ कि फिर क्या हुआ कि सब लोग वहाँ यूनिवर्सिटी में सब मेरे को कहते आप तो मैम खिला के ही सबको पास करवा देते हो, मतलब आप खिला पिला के ही आपका सारा काम हो जाता है। मैं क्या खिलाना पिलाना इन द सेंस कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो अच्छी बात है ना कि मेरे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मैं खुद खाना चाहती हूँ वो मैं लोगों को खिलाना चाहती हूँ। मेरा, अगर आप कहें डिलीशियस बाइट्स का मेन मोटो क्या है, मोस्टली क्या करते हैं कि जो कुकीज में आपका अमोनिया पड़ता है या और प्रिजर्वेटिव्स पड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप सुबह चाय के साथ क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, टेस्ट के साथ केमिकल्स ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप हमारी कुकीज खाएंगे, डिलीशियस बाइट्स की कुकीज खाएंगे, तो चाय के साथ हेल्थ लेंगे, हेल्दी प्रोडक्ट्स लेंगे। राइट, तो दैट्स रियली वंडरफुल स्टोरी। शुरुआत आपकी काफी अच्छी रही और इंटरेस्टिंग रही। अब आप इसके बाद काम कर रहे हो। इसके बाद वो विपिन भैया इसी दौरान मेरे को मिले। तो उनका मानना था कि वो मतलब शुरू से कहते थे, अभी तक उनकी लाइन मेरे प्रोडक्ट के लिए है कि डिलीशियस बाइट्स की कुकीज जो भी खाता है उसकी दिमाग की वायरिंग हिल जाती है, उसको और कोई कुकीज पसंद नहीं आती है। ये उनका स्लोगन है मेरे लिए। ग्रेट। तो फिर उन्होंने बोला कि वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, फार्मर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या मैं उसमें उनके साथ हूँ। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में, उसमें एक तो आपको शेयर लेना था। तो अभी मतलब मैं अपना स्टार्टअप भी कर रही थी, वो भी, तो उसमें मैंने ज्यादा शेयर नहीं तब लिया, मतलब एक लिमिट थी, हम इतनी लिमिट तक इसमें हमारा डालना जरूरी है। तो मैंने कुछ उसका हिस्सा दे दिया कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ हूँ, बट अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो ऐसे ही फिर वो हमारी सेलिब्रेटिंग फार्मर्स के नाम से कंपनी फॉर्म हो गई। उसमें हमारा मेन मोटो ये था कि हम फार्मर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ जो इंडस्ट्री वाले भी जुड़ना चाहें, कोई भी जुड़ना चाहे, ये नहीं कि कोई मीडिया वाले भी हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सारे हर तरह के हैं हमारे इसमें। जो हम 46 शेयर होल्डर हैं, अब तो ज्यादा हो गए। तो इसमें हमारे साथ अब तक 1900 फार्मर्स जुड़ चुके हैं। हमारा इसमें मेन मोटो था कि शुगर केन पे काम करना है हमने। शुगर केन की चुस्की, आप ऑरेंज बार खाते हैं तो शुगर केन की चुस्की होगी, तो ऑरेंज बार में तो सिर्फ पानी और रंग होता है, तो इसमें नेचुरल वाटर और नेचुरल कलर होगा। तो
ये आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा है, खराब नहीं करेगा। Right. जैसे आपके लिवर के लिए भी अच्छा है। तो हम इसमें फार्मर्स को ही कनेक्ट कर रहे हैं कि वही जैसे 10 फार्मर हैं वो एक जगह इकट्ठे होके अपना मतलब छोटी सी आउटलेट बनाए, अपनी FIG बनाए, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाए, और फिर उससे प्रोडक्ट बना के वो खुद भी सेल करे। और जैसे हम जैसे स्टार्टअप्स हैं, हम भी उनसे लेते हैं, क्योंकि हमें देखो वो करके दे देंगे हमें काम, उनका भी इसमें बेनिफिट है, हमारा भी है। गुड़ और जैगरी तो सब बना रहे हैं, बट इसमें जैम बन रही है, चटनी बन रही है, चटनी बहुत अच्छी बन रही है। मतलब ये चटनी खाने से आपका गला खराब भी होगा तो ठीक हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो चुका है कि खराब गले भी ठीक होते हैं। That's really wonderful. तो आप लोग उस पे स्टडी भी कर चुके हो? हाँ, हम स्टडी प्रैक्टिकली हमने स्टडी किया। मतलब बहुत सारे लोग, मतलब मेरा खुद का गला खराब था तो मैंने वही चटनी खाई कि ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें इतनी सारी हमने इंडियन वो स्पाइसेस डाली हैं, तो वो आपके गले के लिए ऑलरेडी जो अच्छी होती है, तो कोई केमिकल नहीं है उसमें। मोस्टली आप मार्केट में जाओ, उसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया या कुछ ऐसी और चीजें। सिट्रिक एसिड तो केमिकल नहीं हम कह सकते, वो तो एक नींबू का ही होता है, बट और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो, और इसमें जुड़ते जुड़ते हमारे साथ 1900 फार्मर्स हैं। 3 आउटलेट हमारी महाराष्ट्र में खुल चुकी हैं, एक करनाल में, एक लुधियाना में डिलीशियस बाइट्स में ही चाय चुस्की बार। Great. So that's really great to know about your businesses. आपने कैसे शुरू किया, क्या चीज किया। तो अगर हम अब बात करें आपके अगले 5 से 10 साल के विजन, मिशन, गोल को लेके, तो वो क्या है, क्या विचार है कि आपको अगले 5 से 10 साल में क्या क्या चीजें करनी है? मेरे को एक ब्रांड बनाना है। डिलीशियस ब्रांड बन चुका है, बट इसको एक्सपैंड करना है, खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। मेरी ड्रीम है कि मेरी कुकीज हर जगह जाए, इवन जा भी रही है, चाहे वो ऐसे कोरियर नहीं होती तो जो लोग आ रहे हैं वो लेके जाते हैं, वो खाते हैं। पहले लास्ट ईयर मेरा जनवरी में मैं सोच रही थी कि मेरा इंटरनेशनल लेवल तक मेरी कुकीज पहुंचनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मैं फेब में, मेरे को जैन एंड में मेरे को एक फिक्की की तरफ से इनविटेशन आया कि इंडिया पवेलियन में प्रोडक्ट शोकेस हो रहे हैं, तो आप करना चाहोगे दुबई एक्सपो में। तो फिर मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, तो मैं चली गई। मतलब उसमें और भी स्टार्टअप्स को चांस मिला, बट क्या था कि आपका रहने का और अपना आने जाने का खर्चा अपना था, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो यही समझूंगी मैंने घूम लिया, बट एक मेरे को चांस मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर अगर मेरे को इनवाइट तभी आएगा अगर इस टाइम मैं जा रही हूँ तो फिर मैंने वो चांस मिस नहीं किया, मैं चली गई। और वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट शोकेस हुए कि वहाँ न्यूजीलैंड की शेट आई, उनकी वाइफ थी, उन्होंने कुकीज टेस्ट की तो उनको बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ मंगवाई अपने खाने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, मेरी रागी की कुकीज। तो इसके अलावा मैंने आमंड कुकीज, वहाँ है दुबई में जो टाटा के हेड हैं, तो हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, तो वहाँ पे उनको मैंने अपना एक पैकिंग दी, उसकी गिफ्ट पैक दिया, तो मतलब एक कुकी का पैक दिया। उसमें बाद में उन्होंने मेरे को मेल की कि आपकी कुकीज बहुत अच्छी हैं, काश मैं इंडिया में होता। तो मतलब उन्होंने स्पेशली मेल की, मतलब ये बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। यही बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े होके वो, मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे को भी याद रखेंगे, हाँ मेरी कुकीज खा के देखेंगे, पैकिंग वाइज नाइस, मतलब हर चीज की उन्होंने एक अच्छी सी मेरे को फीडबैक दिया कि हाँ बहुत अच्छा था सब कुछ। ग्रेट, तो दैट्स रियली वंडरफुल। और आप इस पे काम कर रहे हो, आपको ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल थिंग। तो अब अगर बात करें आपकी लाइफ की जर्नी जो अब तक रही है, पर्सनली, प्रोफेशनली, कुछ ऐसी लर्निंग्स रही होंगी जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रही आपकी लाइफ के लिए, तो वो कौन सी 2-3 लर्निंग्स आपकी रही हैं? मेरी एक लर्निंग रही है कि एक तो आप हमेशा सीखते रहो। तो अगर कुछ ऐसा होता है जो आपकी मर्जी से नहीं होता, जो आप सोचते हो वो नहीं होता, तो आई थिंक वो और भी अच्छा होता है। तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये बात नहीं हुई तो अब हम बैठ जाए, ये गलत हो गया या ऐसा नहीं होता। या मैं ये सोचती कि अगर मैंने काम अब जाके शुरू किया है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में कर लेती तो शायद वो बात नहीं थी। मतलब मेरा असली टाइम यही था ग्रो करने का। स्टार्टअप अगर देखे तो स्टार्टअप पीरियड स्टार्ट ही अब से हुआ है।
तो आई थिंक यही मेरे लिए बेस्ट टाइम था। मेरे को लगता है कि जो भी टाइम है आपका, जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो वही आपके लिए राइट टाइम है। ये नहीं है कि आप उससे पहले कर लेते या बाद में करते या कुछ ऐसे कुछ भी, मेरे को लगता नहीं कुछ नेगेटिव सोचना चाहिए। मेरी लर्निंग ये है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए बेटर है कि अच्छा ही सोचो और अच्छा ही होगा। ट्रू। क्योंकि हमारी जो थिंकिंग पावर है ना, वो हमें उसी तरफ लेके जाती है जैसा जैसा हम सोचते हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे या अपने बारे में ही गलत सोचेंगे तो वैसा ही होगा। तो नेगेटिविटी में तो जाना ही नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज जो आप शेयर करो? इसके अलावा मैं शेयर करना चाहती हूँ कि काम तो करते रहना चाहिए जब तक आप ऊपर नहीं पहुंचने वाले होते। राइट। तो काम करने से आप में हिम्मत रहती है, आप खुश रहते हो, आप में एनर्जी बनी रहती है। प्लस आपको लोगों को मिलना चाहिए, अलग अलग लोगों को। आप बहुत कुछ सीखते हो। ये नहीं है कि वो मेरे से छोटा है या वो मेरे से बड़ा है या वो मेरे लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी जगह बेस्ट कर रहा है और जितना ज्यादा लोगों को मिलते हो आप बहुत कुछ सीखते हो। मतलब आप कोशिश करो कि अगला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पहले उसको समझो, फिर उसके बाद आप देखो आपने कुछ बोलना है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम उसको आप ग्रैस्प कर लो कि वो क्या बता रहा है आपको। तो आपको हर किसी की लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ की कोई आपको जर्नी भी बता रहा है तो आई थिंक आप उसमें से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। डेफिनेटली। मेरे को हर जगह जाना होता है। मेरे को ये नहीं होता कि अब मेरे को यहाँ से इनवाइट आया तो मैं यहाँ भी जाऊंगी। मेरे को होता है कि मेरे को हर किसी से मिलना है। मतलब अगर हफ्ते में 4 दिन भी मेरे को लुधियाना से बाहर जाना पड़े तो मैं जाती हूँ। मेरे को ये लगता है कि जितना हम लोगों को मिलेंगे हमारा कनेक्शन उतना बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंशन उतनी होगी, हमारा ब्रांड उतना लोगों तक पहुंचेगा। अभी G20 का लास्ट हुआ है 29 लास्ट वेडनेसडे उधर रॉक गार्डन में, तो वहाँ पे मेरे को कॉल आई कि आप अपने प्रोडक्ट्स लेके आओ। मैंने कहा ओके। तो 400 मफिन्स बनने थे, एप्पल पाइज बननी थी, तो वो सब फॉरेनर्स ने खाने थे, बट वो 19 कंट्रीज तक मेरे प्रोडक्ट पहुंचने थे। तो फिर मेरे को लगता है कि वो भी वहां पे मैं कई लोगों को मिली। तो आपके लिए कई नए रास्ते और खुल जाते हैं। आप गवर्नमेंट के साथ कैसे जुड़ सकते हो। तो ये मेरी लर्निंग है कि बस आप चलते चलो, रुकना नहीं है। हाँ, और सही आपने बात बोली है कि जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, और वो हर किसी एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता ही है आपके खुद के ग्रोथ के लिए, आपके खुद की जर्नी के लिए। दैट इज वन वंडरफुल थिंग अबाउट मीटिंग पीपल। तो अभी जैसे आप स्टार्टअप में हो, आपने 2 स्टार्टअप्स किए हैं और वो भी दोनों एग्रो बेस्ड स्टार्टअप हैं, तो आपको क्या लगता है कि एग्रो बेस्ड स्टार्टअप जो है उसका स्कोप अभी इस इंडस्ट्री में किस तरह का रहने वाला है? क्या क्या और इनोवेटिव आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके? देखो, एग्रो में क्या है कि फार्मर्स, अगर हम कुछ अच्छा सोच के चलते हैं, खाली जो मेरा दूसरा स्टार्टअप है उसमें अगर हम सोचें कि सिर्फ हम अपना फायदा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जनरली हमारा अगर प्रोस्पेक्टिव अच्छा है, हम ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के साथ औरों की ग्रोथ देख रहे हैं, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए इधर उधर से सब जगह से आ जाती हैं, तो आपकी ग्रोथ चलती रहती है। तो एग्रो बेस्ड जो स्टार्टअप है उनकी आगे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। अब लोग जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे हटके जो स्टार्टअप बना रहे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। ये कुछ डिफरेंट कर रहा है। जो मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी, बड़ी कंपनीज बना रही हैं, वो तो चल ही रहा है, बट लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, बट एक स्टार्टअप जो है आई थिंक और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कितने, अब अगर मैं कहूँ तो मेरे पास इस टाइम मेरे कैफे में ही 8 जने मेरे पास हैं, तो जो मेरी बेकरी है उसमें मेरे पास अलग से हैं। तो ऐसे है कि अगर मैं अकेली ने स्टार्ट किया तो आगे 10, 11, 12 बंदे मेरे अंडर, अब उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। मोस्टली अब मैं क्या कर रही हूँ कि यंग जनरेशन, जो नए बच्चे आ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको हायर कर रही हूँ, क्योंकि वो सीखेंगे। उनमें इस टाइम में वो होता है कि हमें कुछ सीखना है। अगर आप प्रोफेशनल को लेते हो अपने उसमें लाइन में, तो प्रोफेशनल आपकी बात नहीं सुनेगा।
वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। मतलब अगर प्रोफेशनल शेफ कहूँ, मेरे मेरे उसमें कोई भी प्रोफेशनल शेफ नहीं है मेरे कैफे में। सब मेरी अपनी रेसिपीज चलती हैं। बच्चों को मैंने सिखाया, वो बनाते हैं, वो करते हैं, बट अच्छा कर रहे हैं। तो जितना आप यंग जनरेशन के साथ जुड़ोगे तो आई थिंक आप भी यंग ही रहोगे। और ऊपर से इनोवेटिव आइडियाज भी यंग लोगों के पास ज्यादा रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। मतलब जितना ज्यादा आप सीनियर या जितने ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को आप हायर करते हो, वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा रिजिड भी हो जाते हैं कि ये परफेक्शन के साथ ऐसे काम होगा तो ऐसे ही होगा, उसमें वो ऐसे ही होगा। प्लस माइनस की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब कैफे खोलना था तो मैंने आई थिंक जितने की इंटरव्यू ली, कोई कहता जी बड़े बड़े होटल्स वो देसी घी नहीं यूज करते, उसमें देसी घी का एसेंस डालते हैं। तो मैंने तो इतनी जगह काम किया है, मैं तो पालक नहीं यूज करूंगा, ग्रीन कलर यूज करूंगा, टमाटो की जगह रेड। मैं कह भैया माफ करो, मैं आपको ही नहीं रखूंगी यहाँ पे क्योंकि मेरे को है कि मैं उसको सही चीजें ला के भी दे दूंगी। तो मेरे को अपने कैफे पे फ्लेवर और एसेंस यूज नहीं करनी। मेरे को अगर हेल्दी की तरफ जा रहे हैं तो अगर कुछ लोगों को हट के देंगे तो ही वो आए। हाँ, तो आज की डेट में लोग हेल्थ कॉन्शियस भी काफी होते जा रहे हैं ना। हर किसी को चाहिए कि हेल्दी फूड हो और साथ में टेस्ट भी हो, तो दोनों चीज का बैलेंस हो। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट विद हेल्थ। करेक्ट। सो जैसे कि आप एग्रो बेस्ड स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, तो इसमें जैसे आपने एक प्रोडक्ट को पकड़ा, शुगर केन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें इसमें एक्सप्लोर की जा सकती है? किन किन सेगमेंट में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है? देखो, हम जीरो वेस्ट पे काम कर रहे हैं। खाली शुगर केन पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके आगे हमने शुगर केन का जो इससे हमारी कुकीज भी बन रही हैं, ब्रेड्स भी बनेंगी आगे। हम शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं। हम आईआईटी जो है आईआईटी महाराष्ट्र तो मुंबई है, उसके साथ भी हमारा है। आईआईपी जो पैकिंग वाला है मुंबई में, वो भी हमारा, सारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है हमारे साथ। तो ये दूसरे स्टार्टअप में, मतलब वही बता रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छा हमारा वो चल रहा है। उसमें हमने शुगर केन का जो वेस्ट होता है उस पे हमने ऑयस्टर मशरूम ग्रो की है। उसके बाद जो उसका वेस्ट बचेगा उससे हमारी एनर्जी जनरेट होगी, हमारी लाइट जनरेट होगी। गैस प्लांट लगे, मतलब हर जो एरिया है फार्मर्स इकट्ठे होके वो लगाएंगे। तो एक तरह से एनर्जी भी आप जनरेट कर रहे हो, आप फूड भी जनरेट कर रहे हो। फार्मर एक तरह से फुली वो उसके पास पावर आ जाएगी, वो अच्छा कर सकेगा, ग्रो करेगा। करेक्ट। और जितना ज्यादा फुल यूटिलाइजेशन होगा किसी भी क्रॉप का, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली सभी स्टेक होल्डर्स को होगा। जो फार्मर है वो भी, मैन्युफैक्चरर को भी, प्लस इसमें हमारी मशीनरी भी अपनी बन रही है। चिलर बनेगा शुगर केन से। मतलब ये हमारा स्टार्टअप ऐसा है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक की हर चीज इसी में ही होगी और वो फार्मर्स ही बनाएंगे। अभी तक फार्मर्स इसमें एक शेविंग वाली बना चुके हैं, क्रशर बनाया है उन्होंने, एक चिलर बनाया है जिसमें 4 मिनट्स में चिल हो जाता है। एक डीप फ्रीजर हमारे साथ, डीप फ्रीजर वाली कंपनी है, वेल फ्रॉस्ट वाले हमारे साथ हैं। तो मतलब बहुत सारी कंपनियां साथ में हमारे कनेक्ट कर रही हैं। उन्होंने हमें चुस्की की मशीन बना के दी है, ब्रांडिंग करके दी है प्रॉपर। उसमें 1 घंटे में आपकी आइसक्रीम जम रही है। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब फर्स्ट 2 इयर्स हमें लोगों को लग रहा था क्या कर रहे हैं, बट ये क्या होता है कि एक स्टार्टअप में ना जे कर्व आना चाहिए। पहले तो आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर एकदम से ऊपर जाना शुरू होता है। तो मेरा डिलीशियस बाइट्स भी ऐसा था, अब सेलिब्रेटिंग फार्मर्स भी ऐसा है। पहले तो इन्वेस्टमेंट ही थी, तो बट अब ऊपर जा रहा है। राइट। और ऐसा होता भी ना, जब आप इनोवेटिव आइडियाज लेके जाते हो किसी भी सेगमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, और अगर आप जैसे आज की डेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है और एग्रो बेस्ड के ऊपर काफी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है, काफी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो सारी चीजें जब आपको सपोर्ट कर रही है और आप कोई भी सेगमेंट पकड़ लेते हैं, जैसे आपने शुगर केन को पकड़ा है, शुगर केन से रिलेटेड इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है। बट थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करो। उसके अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आपको अलग अलग कंपनीज मशीनरी बनाने में, मशीनरी को यूज करने में, फिर आपका जो है
फ्रीजिंग प्लांट और ये सब चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वेलफ्रॉस नहीं, रॉकवेल है, गलत रॉकवेल। नाम बोल गई। रॉकवेल है। राइट राइट, तो ये सारी कंपनीज हैं और भी कई कंपनीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। तो बेस्ट टाइम है आज की डेट में किसी भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करें। और इससे दो बेनिफिट हैं। एक तो जो क्रॉप अभी वो पैदा करके मार्केट में बेचते हैं वो उसमें उनको वैल्यू नहीं मिलती उतनी जो उनको मिल सकती है। तो जब ये इंक्लाइंड हो जाएगा बिजनेस विद दी फार्मर्स, तो फार्मर्स को वैल्यू ज्यादा मिलेगी फॉर देयर प्रोड्यूस। एक तो वो बेनिफिट होगा, उनकी लाइफ साइकिल थोड़ा बेटर होगी, बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, और जो वो पैसा ज्यादा कमाएंगे वो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी पे खर्च करेंगे और बेटर प्रोडक्ट यूज करेंगे अपनी फार्म्स को बेटर बनाने के लिए, अपनी क्रॉप को बेटर बनाने के लिए, और ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बना पाएंगे। दैट विल ऑल्सो एड वैल्यू टू द सिस्टम। और फाइनली मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम आज खा रहे हैं, हमें भी कुछ हेल्दी फूड खाने को मिलेगा या जीरो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आएंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो वेस्टेज होती है, जो चीजें खराब होती हैं, जो हम सुनते हैं ना कि फसलें का जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो जला दिया जाता है, वो फिर आगे जाके एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो वो सब चीजों से भी छुटकारा मिलेगा। तो दैट विल ऐड वैल्यू ओवरऑल टू दी सिस्टम। तो दैट्स वंडरफुल थिंग। तो मैम अब वापस आपके बारे में बात करते हैं। तो आपके नेचर किस टाइप का है? इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? जब आप लोगों को मिलते हो कैसा आपको फील होता है? क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका ड्रॉबैक है? देखो, लोगों को हम मिलते हैं, लोग हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनमें से अच्छी बातें सीख रहे हैं कि बुरी बातें सीख रहे हैं। तो आपको हर कोई सब कुछ नई राय भी देगा, सब कुछ देगा। अब सब सुनो, सब कुछ करो, जो आपको बेस्ट लगे वो चुन लो, जो नहीं बेस्ट उसको छोड़ दो। बट किसी को भी आई थिंक नेगेटिव फीडबैक देने की जरूरत ही नहीं होती आपको, क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही होता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ की जर्नी है ना, वो उस हिसाब से सही है। हर किसी की लाइफ की जर्नी अपनी अपनी होती है। तो आई थिंक अभी तक तो मेरा ये मानना है कि किसी को ये कहना ही नहीं चाहिए कि आप गलत हो, क्योंकि वो उसकी लाइफ की जर्नी है, उसके लिए वो सही है। तो हमारे लिए जो सही है हम कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं बदलो किसी को, आप अपने हिसाब से चलते जाओ। अगर आप ठीक हो, लोग बदलते जाएंगे। ट्रू। तो अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी में जो लोगों ने सपोर्ट किया आपको, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको आपके लाइफ जर्नी में अब तक सपोर्ट किया है, बिजनेस में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में? सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे बच्चे, मेरी 2 डॉटर्स हैं, 1 सन है, 2 सन इन लॉ हैं, सबने सपोर्ट किया, फुली सपोर्टेड है। और एक मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे मेंटोर्स और जितने भी मेरे साथ स्टार्टअप में अभी तक जुड़े हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब हर किसी की आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनपुट होती है। मतलब जितने भी आज तक मेरे को मिले हैं, सबकी सपोर्ट रही है। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल थिंग कि अगर आपको सही समय पे सही लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, तो आपकी जर्नी और अच्छी हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी चीज आप कर रहे हो, वो करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन कभी कभी होता है कि अभी जैसे मैंने कैफे ओपन करना था, तो डबल माइंडेड थी कि करूं कि ना करूं। मतलब 1 साल तक उसका काम थोड़ा सा लटका के रखा। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला, फिर मैंने भी सोचा कि मतलब सबका था कि अब यहाँ तक आ गए हो तो एक चांस लेने में क्या जाता है। मतलब बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये काम नहीं किया। बेटर है कि करके देख लो, होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। मतलब चांस नहीं छोड़ना। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कुछ सीख लेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। और तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि मतलब चांस लेते रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलती है वो अगर आप टाइमली ले लो तो आपको हेल्प करती है। बिल्कुल। मतलब मेरे को लगता है कि अगर हमें कोई रास्ता मिल रहा है तो उसमें मेन तो ऊपर वाले का हाथ होता है, वो हमें डायरेक्शंस दे रहा है। बट हम वो डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका मतलब आप ग्रो करोगे। करेक्ट। मेरा अपने बच्चों के लिए भी यही था। मेरे डॉटर बाहर गई, उसको मैं पीएचडी वहाँ की, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन जो भी था, बट था कि अगर तेरे को चांस मिला तो तू जा, स्कॉलरशिप बेसिस पे। सब अच्छा रहा। ऐसे ही मेरी छोटी डॉटर के साथ भी था, उसको भी गोल्डमैन में कॉल आई तो कहती मम्मी गोल्डमैन सैक्स में कि मेरी कहाँ होगी वहाँ पे सिलेक्शन। अगर तेरे को कॉल आई है तो इसका मतलब सिलेक्शन होगी, ट्राई तो कर। तो ऐसे ही है सब।
तो मेरे को लगता है कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो उसमें भी पीछे ऊपर वाले की एक पावर है ना, जो हम देख नहीं पाते। करेक्ट, और दोनों एस्पेक्ट है ना, अगर आपका उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लिया, वो कन्वर्ट हो गई, दैट इज द बेस्ट थिंग, और नहीं भी हुई तो वो भी आप उस अपॉर्चुनिटी में वो आपकी आप नेक्स्ट, हाँ कुछ लर्निंग तो मिलेगी आपको, कुछ तो एक्सपीरियंसेस गेन होंगे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर मैं कहूँ, मैंने ब्राजील के लिए प्रेजेंटेशन दी, मेरे को उनको भी पता था कि ये प्रेजेंटेशन मशीनरी वालों ने उन्होंने सिलेक्ट करना है, बट उनको था कि मेरी कुकीज वहां पहुंच जाए। अगर उनको मेरे पे विश्वास था तो मेरे को भी उनके विश्वास पे विश्वास रखना था कि हाँ मेरे को कुकीज भेजनी है अपनी। तो ऐसे ही होता है बस। आप ये नहीं होता कि एक जना कोशिश करे, कोशिश दोनों साइड से होती है। और कई बार हम सोचते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी जो सामने दिख रही है वही है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है वो नहीं होती, उसके पीछे कुछ और बड़ा ही चीज होती है। बिल्कुल, आप अगर कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सिर्फ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, बट आप वहाँ सोचो अगर 100 लोग हैं, अब वो 100 लोगों में से 100 लोगों को मिलने जा रहे हो, अगर 100 में से आपको 50 भी मिल लेते हैं, 50 में से किसी एक के साथ भी पॉजिटिव वाला कुछ अच्छा बड़ा बिग हो सकता है, तो आई थिंक उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और नहीं भी होगा तो आप 100 लोगों से कुछ सीख के आओगे, 100 बातें सीखोगे। ट्रू, हर किसी से एक बात भी सीखी तो 100 बातें हो गई। दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ एनीथिंग, जो भी आप करो तो अब पॉजिटिव आउटकम सोच के रखोगे तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए बेटर रहेगी। तो अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कोई मैसेज, एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस के साथ में? मेरा तो यही एडवाइस है, मैसेज है कि जो आप करना चाहते हो वो आप दिल से करो, और अगर आपको चांस मिलता है तो उसको छोड़ो नहीं, कोशिश तो जरूर करो। करेक्ट। अगर हम कोशिश करेंगे तो होगा। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई छोटे से ही बड़ा होता है। ट्रू, शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ती है। बच्चा जब सबसे पहले क्रॉल करना ही सीखता है, पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करता है, फिर जब वो स्टेप लेता है तो गिरता भी है, तो गिर के वो बैठ नहीं जाता, वो फिर कोशिश करता है, तो फिर हम दौड़ना भी शुरू कर देते हैं ना उसी हिसाब से। तो हमारा जो स्टार्टअप वाला सिस्टम है वो भी ऐसा ही है कि हम जब चल रहे हैं, हम अभी क्रॉल कर रहे हैं, या हमने एक स्टेप लिया, अगर हम गिर गए, हम कहीं रुक गए, हमारा वो ठीक नहीं चला, बट हम अगर रुक जाएंगे ना तो वो कहीं गलत है। तो हमें वो स्टेप ले लेके हमें भागना है, धीरे धीरे चलना है और फिर भागना है। Right. मतलब आपको समझना चाहिए आपका स्टार्टअप एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो आप उसको कैसे बड़ा कर रहे हो, हर फेज आएगा उसमें कुछ फेज ऐसे आएंगे कि आपका कहीं पे लॉस हो रहा है, कहीं पे फायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट आपको उसको लेके चलना है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो लास्ट में तो सक्सेसफुल होता ही है ना, तो उसके लिए फिर हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं हटना। करेक्ट। और आपने जो आज चीजें शेयर की आपके स्टार्टअप के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, मोटिवेशनल भी थी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कोई भी चीज जो करना चाहते हैं लाइफ में, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सोचने के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह काम करना शुरू करना चाहिए, कर देना चाहिए, बस जो है कर दो, बस उसको उठाओ और उस पे काम पे लग जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज की डेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम तो है, इंडिया में बढ़ रहा है, और वन ऑफ दी टॉप 5 टॉप 6 इकोनॉमीज में हम लोग भी आते हैं। साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक हमारा इंडिया का काफी ग्रो हो रहा है, और बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी अवेलेबल हैं, ना सिर्फ सेंटर बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आज की डेट में। तो वो चीज अवेलेबल है, तो वो सभी को बेनिफिट लेना चाहिए। और आई मस्ट से कि मैम, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग्स हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जो भी आज वीडियो देखेंगे, ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन डेफिनेटली मिलेगा, और वो अपने स्टार्टअप पे भी काम करेंगे तो वो चीज़ों को देख के आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। दैट विल हेल्प देम। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली आपके साथ आज डिस्कशन करते हुए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वॉज रियली वंडरफुल हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And I will also share your social media links so that
जो हमारी ऑडियंस है वो अगर कोई देख रहे हैं आपको, उनको कभी लगे कहीं पे कि आपकी हेल्प से उनको बेनिफिट मिल सकता है, तो वो आपको कनेक्ट कर लेंगे और आपकी हेल्प भी लेंगे. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट टू. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. आई होप कि आप सबको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली और आपको अच्छा लगा होगा आज का डिस्कशन देख के, आज का मैम के साथ में इंटरव्यू देख के. तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें और कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करें. और साथ ही साथ भूले मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कुछ ना कुछ नए सीखते रहना. थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन. हैव अ गुड डे. थैंक यू. बाय बाय.